દિવસ ક્યાં ઉગ્યોસ? ઈ તો વાત છે, દિવસ ઉગતા જ ક્યાં છે હમણાં દિવસ જ કંઈક બીજી દિશામાં ઉગે છે. થોડોક જવાબ આપો ગાઈસ, કોમેન્ટ કરો. મિત્રો તમે થોડાક જવાબ આપો. 2-3 દિવસથી મમ્મી છે ઈ એક કામમાં વળગ્યા છે સતત. થોડી વધારે આજ 25% કેટલા? 25? ખરેખર રેકોર્ડ બ્રેક કર્યો. બીજું નવીન હવે શાળો આવ્યો, ખાવ દિવસે ટૂંકો આવ્યો, કઈ કામ જ નહીં. દિવસે ये 6 वागे हाथ में जाए. હાથ में જાય. वैसे मैं अपना 100% देने का ट्राई कर रहा हूँ कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए. हेलो मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. तो अभी 2 दिनों से मैं ना अपना एडिटिंग का वर्क कर रहा था. तो जो मैं वो रील एडिट कर रहा था ना मेरी वाली, तो वो मैंने 2 दिनों से करी नहीं, मतलब कल भी नहीं करी थी और आज भी नहीं करी. तो अब मैं वो रील है वो एडिट करने बैठूंगा. तो चलो उसको मैं एडिट करता हूँ. आई होप कि आज वो कंप्लीट मैं कर पाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा उसमें ना वर्क ज़्यादा है और मेरा पीसी इतना लोड नहीं ले पाता, तो थोड़ा टाइम लेता है मेरा पीसी. तो उसकी वजह से रील एडिट करने में भी टाइम लग रहा है. तो चलो अभी मैं एडिट करता हूँ और देखते हैं कि आज हो पाती है या फिर नहीं. आई होप कि आज हो जाए तो मैं कल है वो अपलोड कर सकूँ. तो चलो देखते हैं. अभी तो मैं फ़िलहाल एडिट करने बैठता हूँ. सो गाइज अभी थोड़ा प्लान है वो चेंज हुआ है. अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट में, क्योंकि बहन को वहाँ से कुछ लेना है. तो इसने जो मेरा है वो एडिटिंग का मतलब प्लान था वो इसने फेल कर दिया. એડિટિંગ નો પ્લાન હતો તમારો? હા, તો હું મારું એડિટિંગ જ અત્યારે કરતો હતો. એવું? હા, તો એડિટિંગ મૂકીને તમને અમારી જોડે આવો છો? આ તો ઓલી રીલ હજી બાકી જ છે ને મારી વાળી. એવું છે? હા, એટલે વાત છે, આ દિવસ ક્યાં ઉગ્યોસ? ઈ તો વાત છે, દિવસ ઉગતા જ ક્યાં છે હમણાં દિવસ જ કંઈક બીજી દિશામાં ઉગે છે. પાણીપુરી બેન માટે પ્રેમ જાગ્યો. અને હા ગાઈસ, તમે હજી કે ઉખાણાના જવાબ નથી આપ્યા. થોડોક જવાબ આપો ગાઈસ. કોમેન્ટ કરો. मित्रों તમે થોડાક જવાब આપો. तो उसके जो आंसर है वो अभी आरती बताएगी. એમાં મારો આન્સર એ હતો, પ્રશ્ન એ હતો કે એવી કઈ ગેમ છે કે એના નામમાં બિલાડી આવે છે એમ. એ ગેમનું નામ છે ક્રિકેટ. બિલાડી શબ્દ આવે એ ગેમ છે ક્રિકેટ. અને જે મમ્મીએ પૂછ્યો હતો એવી કઈ ગિફ્ટ કે જે બેનને આપણે આપી શકીએ કે જે તો ભૂખ લાગે ત્યાં ખાઈ પણ શકે, તરસ લાગે ત્યાં પી પણ શકે, અને ઠંડી લાગે તો તાપી પણ શકે, તો એવી વસ્તુ તાપી પણ શકે એમ. તો એ વસ્તુ છે નારિયેળ. બરોબર. તો નારિયેળને આપણે પી પણ શકીએ, ખાઈ પણ શકીએ, અને સુકાઈ જાય ત્યારે એનું તાપણું પણ આપણે કરી શકીએ. તો એ જવાબ છે. તો ચાલો હવે અમે જઈએ છીએ માર્કેટમાં. તો મળીએ હવે માર્કેટ. હા, કંઈક બેનને કંઈક લેવાનું છે. मुझे बेन જ લેવાનું હોય. सो गाइज अभी हम घर पे आ गए हैं. वहाँ मैंने कुछ शूट नहीं किया था, तो आरती ने क्या क्या लिया है वो अभी आपको बताएंगी. क्या क्या लिया है तूने? શિયાળાની વસ્તુ લીધી છે બધી શિયાળાની. શું લાવી? હા, 2 જોડી મોજા લાવી છું. એક ને 2. બીજું? બીજી આપણે શિયાળાની લિપ ગાર્ડ ગાર્ડ ને એક શૂઝ લાવ્યા છે. એક જોડી. તો હમણાં 2-3 દિવસથી મમ્મી છે એ એક કામમાં વળગ્યા છે સતત. એ તમને ખબર જ છે કયું કામ? ભરત કામ. સતત હમણાં 2 દિવસથી ખૂબ સારી એવી પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યા છે એમાં. હા, ટૂંકમાં થોડીક સ્પીડ છે એ વધારી છે હવે. નગર થોડુંક ઢીલું કામ ચાલતું હતું, હવે થોડુંક સ્પીડ વધારી છે. એવું છે કે મમ્મી? થોડી વધારે આજ 25%. કેટલા? 25? ખરેખર રેકોર્ડ બ્રેક કર્યો. આજ 25 પૂરા કરી દીધા એમ? આ કેટલામાં 25 નું છે? આ 25 ઉપર છે. જો 20 પાછા કાઢ્યા મેં થોડા. હા, સરસ. એટલે હમણાં થોડુંક ખેંચાણમાં બધું કામ હાલે છે. પૂરું ઝટ થાય ને, ઝટ પૂરું થાય ને હવે એમ. બીજું નવીન હવે શાળો આવ્યો, ખાવ દિવસે ટૂંકો આવ્યો, કઈ કામ જ નહીં. દિવસે 6 वागे हाथ में जाए. હાથ में જાય. सो मित्रों मैं अभी खाना खा के ऊपर आ चुका हूँ और अभी मैं मेरी जो रील है वो एडिट करूँगा. आप मेरे पीछे देख सकते हो डेस्कटॉप में. तो मैं ये आफ्टर इफेक्ट में एडिट कर रहा हूँ. तो अब मैं एडिट करता हूँ इसे. वैसे आज मैं चाहता हूँ कि आज ये ख़त्म हो जाए, पर मुझे लगता है वहाँ तक तो ये आज ख़त्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा काम बाकी है अभी. ऐसा लगता है कि हो जाएगा, पर नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा जो पीसी है ना वो थोड़ा सा लो है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं है कि ये स्पीड में थोड़ा हो जाए. बस इसीलिए ये थोड़ा सा
टाइम ले रहा है। वैसे मैं अपना 100% देने का ट्राई कर रहा हूँ कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि मैं अपलोड भी कर सकूँ। तो बस यही सीन है अभी, और अभी मैं एडिटिंग करने बैठूँगा। तो चलो आपको मैं इसका टाइम लैप्स है वो दिखाता हूँ। देखो तो मैं अभी एडिटिंग कर रहा था और फिलहाल है ना वो जो आफ्टर इफेक्ट था वो क्रैश हो गया। मतलब क्रैश मतलब कि जो मैं इफेक्ट लगा रहा था मैंने सिर्फ जो मेरी क्लिप थी ना उस पर वॉप स्टेबलाइजर में भी लगा रहा था, और मुझे वार्निंग आ गया कि भाई ये इसमें नहीं लग सकता, और फिर उसमें भी ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो गया। तो ऐसा मेरे बार 2-3 बार हुआ है। जो प्रोजेक्ट है वो तो नहीं जाता, पर ऐसा ही मतलब क्लोज होता था। शायद मेरे ख्याल से मेरा जो पीसी है ना उसकी वजह से है, क्योंकि ये थोड़ा सा लो है और इतना ज़्यादा हैवी लोड वो शायद नहीं सह सकता होगा, और मैं इससे ज़्यादा काम करवा रहा हूँ, मतलब इसकी औकात से बाहर का भी। हाँ आप बोल सकते हो। वैसे ये थोड़ा सा हाई है लेवल, मतलब थोड़ा सा इतनी ज़्यादा मैं क्लिप यूज़ कर रहा हूँ ना कि आप देख लेना। मतलब लेयर उसमें क्या होता है कि आफ्टर इफेक्ट में लेयर बाय लेयर होता है, और लेयर बाय लेयर करने में काफ़ी ज़्यादा वो सीपीयू है उस पर लोड पड़ता है। वैसे एडोबी का सॉफ्टवेयर है ना वो प्रोसेसर बेस है, और मेरा जो प्रोसेसर है ना वो इंटेल i5 है, और वो 10th जनरेशन है, तो शायद उसकी वजह से ये लोड पड़ रहा होगा, तो ये बंद हो जा रहा होगा। तो बस यही कहना था मुझे। तो आज के इस व्लॉग को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आओ जो।